بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں عظمیٰ چودھری۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ملک میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم کی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ لینڈ سلائیڈنگ سے بند ہونے والی شاہراہوں کو جلد بحال کیا جائے۔ پھنسے مسافروں کو رہائش اور خوراک سمیت ہر ممکن سہولیات دی جائیں۔ متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کی روک تھام کے لیے فوری طور پر اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ وزیر اعظم کی متعلقہ اداروں کو ہدایت۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے حالیہ مونسون کے دوران کلاؤڈ برسٹ واقعات نے تباہی مچا دی۔ 242 افراد جاں بحق، سینکڑوں زخمی۔ گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشیں اور کلاؤڈ برسٹ۔ شاہراہ قراقرم اور بابو سر ٹاپ دونوں اطراف سے دوبارہ مکمل بند۔ استور، غزر، سکردو اور گلگت میں بھی دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی۔ گلگت میں آپٹک فائبر کیبل مختلف جگہوں سے ٹوٹ جانے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس شدید متاثر۔ این ڈی ایم اے کی سیاحوں کو پہاڑی علاقوں کی جانب سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ شاہراہ بابو سر پر پھنسے سیاح محفوظ مقام پر منتقل۔ سڑک کی بحالی، لاپتہ سیاحوں کی تلاش کے لیے امدادی اداروں کی جانب سے کارروائیاں جاری۔ پنجاب میں بارشوں کے باعث گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک شخص جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 9 افراد زخمی۔ لاہور میں موسلادھار بارش۔ تاج پورہ میں 115، ایئرپورٹ 109، پانی والا تالاب 99، چوک ناخدا 98، اپر مال 97، لکشمی چوک 94 اور مغل پورہ میں 86 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ رواں سال مانسون بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 135 شہری جاں بحق، 485 زخمی۔ پی ڈی ایم میں آئندہ چند گھنٹے کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، مری گلیات کشمیر اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش متوقع۔ عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور موسمی حالات سے باخبر رہیں۔ محکمہ موسمیات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ننکانہ صاحب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ننکانہ صاحب میں سیلابی ریلے سے بچاؤ کے لیے 2 فلڈ ڈرین بنانے کا اعلان۔ سڑکوں اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کی ہدایت۔ شہر کا بیوٹیفیکیشن پلان 2 ہفتے میں طلب۔ ضلع ننکانہ صاحب کے لیے کلینک آن ویل اور الیکٹرک بسوں کی تعداد بڑھانے کا اعلان۔ جسلانی موڑ میں سیلاب سے متاثرہ گھروں اور زرعی اراضی کا معائنہ۔ سیلابی ریلوں سے متاثرہ فصلوں اور لائف سٹاک کے نقصان کا ازالہ کریں گے مریم نواز۔ خیبر پختونخوا میں موسلا دھار بارشیں، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے جانی و مالی نقصانات۔ مختلف حادثات میں 13 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ خوازہ خیلہ، چترال، دیر، سوات کوہستان، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، شانگلہ، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت صوبے بھر میں مزید موسلا دھار بارش متوقع۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کی صدارت میں مشرق وسطی اور مسئلہ فلسطین پر مباحثہ۔ طاقت کا یک طرفہ بے دریغ استعمال کشیدگی میں اضافہ کرتا ہے۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے لیے اصولی موقف اور یکجہتی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ غزہ میں انسانیت کا قتل عام جاری ہے۔ اب تک خواتین اور بچوں سمیت 58,000 سے زائد افراد شہید کیے جا چکے۔ غزہ میں انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ مسئلہ فلسطین کا حل 1967 کی سرحدوں سے پہلے 2 ریاستی حل میں مضمر ہے۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ فلسطین حل کرنا ہوگا۔ سلامتی کونسل اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان شام میں پائیدار استحکام کی حمایت کرتا ہے۔ ایران پر اسرائیل کی جارحیت انتہائی باعث تشویش ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی عرب کے وزیر اقتصادیات کی نیو یارک میں ملاقات۔ تحفظ خوراک، مینوفیکچرنگ اور معدنیات سمیت اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور۔ باہمی فائدے کے لیے سرمایہ کاری اور تکنیکی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم سے نیو یارک میں تاجروں اور سرمایہ کاروں کے گروپ کی بھی ملاقات۔
ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मुतनव्वे मौके तलाश करने की तरगीब। इसहाक डार का पाकिस्तान अमरीका के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताल्लुकात को हकीकत का रूप देने में समंदर पार पाकिस्तानियों के अहम किरदार पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी मुल्की मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर। निजकारी के अमल को मौसर, जामे और मुस्तैदी से करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुंतखब इदारों की निजकारी में तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाज़े पूरे किए जाएँ, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। हालिया तिजारती मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मोहम्मद शहबाज शरीफ। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर-ए-आज़म के विजन और क़यादत में गुज़श्ता 1.5 साल में हुकूमत की माशी कारकर्दगी को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी से ऑस्ट्रिया की सुबुकदोश होने वाली सफ़ीर एंड्रिया विके की मुलाकात। दो तरफा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान के सयाहती शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। सदर मुमलिकत ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ में सफ़ीर की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीजा फ्री एंट्री की सहूलत देने का उसूली फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेशी हम मनसब जहांगीर आलम चौधरी से मुलाकात में सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स पर वीजा फ्री एंट्री पर बड़ी पेशरफ्त। दोनों वज़ीर दाखिला का इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी जिन अमूर पर बिल्कुल मुत्तफिक और क्लियर है वो ये है कि साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। मुसल्लह फ़ौज की आला क़यादत का सानहा 9 मई के हवाले से मौक़िफ़ वाज़े और दो टोक रहा। रियासती अमलाक और शहदा की यादगारों पर हमला करने वाले मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजाएं हुई। रियासत किसी भी किस्म की बदअमनी, इंतशार या कौमी वक़ार पर हमले को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के अमल को यकीनी बनाने के लिए सानहा 9 मई के ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक कटहरे में लाना नागुज़ीर है। सज़ाओं से वाज़ेह है कि रियासत ने शहदा की यादगारों और लवाहिकीन की हुर्मत को तरजीह दी। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी। 9 मई वाक़यात में 82 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके जख्मी किया गया। 9 मई को लाहौर में 14 वाक़यात हुए। जिना हाउस समेत दीगर अमलाक को नजर आतिश किया गया। PTI के मुश्तिल हजूम ने सोशल मीडिया पर खुद वीडियोस डाली। 9 मई के मुलजिमों को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। सैकड़ों सरकारी और निजी गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत PTI ने 9 मई को हमले किए। रियासत 9 मई जैसे वाक़यात पर दरगुजर और चश्म पोशी नहीं कर सकती। तलाल चौधरी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी डिफेंस इंडस्ट्री फेयर में शिरकत। तुर्किया के वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा और नायब वज़ीर दिफा के साथ अलग अलग मुलाकातें। मुलाकातों में फ़ौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, दिफा और सलामती के शोबों में ताउन को वुसअत देने की अहमियत पर जोर, स्ट्रेटिजिक शराकतदारी और दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशों का इयादा। सीनियर सियासतदान साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म, सदर ममलकत, सदर मुस्लिम लीग नून, वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर कौमी असम्बली समेत सियासी और समाजी शख्सियात का इज़हार अफसोस। मियां मोहम्मद अजहर 1987 से 1991 तक लाहौर के मेयर रहे। 1990 से 1992 तक गवर्नर पंजाब के ओहदे पर फाइज रहे। कारोबारी दुनिया में भी नुमाया मुकाम रखते थे। मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए भी सरगर्म रहे।
मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस की महासर तलाशी की कार्रवाइयां। बांडीपुरा के इलाके गडोरा में कार्रवाई में भारतीय फौज ने 3 नौजवान गिरफ्तार कर लिए। 2017 में दर्ज मन घड़त मुकदमे में मजीद 3 कश्मीरियों को उम्र कैद की सजाएं। भारतीय हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ शोपियां में मुकम्मल हड़ताल। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी का कश्मीरी नजरबंदों की हालत इज़हार पर सख्त तशवीश का इजहार। अमरीकी सदर के हाथों भारत की सुबकी का सिलसिला जारी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के 5 तैयारे गिराने का बयान फिर दोहरा दिया। ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय दावा फिर झूठा साबित। अगर जंग न रुकवाता तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। दोनों मुल्कों से कहा, जंग न रोकी तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन अरकान से खिताब। अमरीकी सदर ट्रंप के सीज फायर दावों पर राहुल गांधी भारतीय वजीर आजम पर बरस पड़े। कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन लीडर की नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद। दुनिया जानती है ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान किया। वजीर आजम मोदी ने ट्रंप के दावों का एक बार भी जवाब नहीं दिया। यही सच्चाई है जो छुप नहीं सकती। जो लोग खुद को देशभगत कहते हैं वो भाग गए हैं। राहुल गांधी। गजा में काबिज इजरायली फौज के वहशाना हमलों का सिलसिला जारी। ताज़ा हमलों में 31 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा शहर में बमबारी से मुतादिद घर तबाह। बस्ती गजा में बोरेज पनागजीन कैंप पर भी बमबारी। गजा में कहत की सूरत हाल संगीन। खुराक की किल्लत के बायस शीरखार बच्चों समेत 21 अफराद भी लुकमा अजल बन गए। फाका खुशी से जाँ बहक होने वालों की तादाद 111 हो गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश तीसरे T20 मैच में कल ढाका में मध्य मुकाबला शाम 5 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। बहरीन में अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप। पाकिस्तान के एहसन रमजान सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में भारत के मायोर गौरव को 4 फ्रेम से शिकस्त। भारतीय के वेस्ट कोई फ्रेम न जीत सका। वॉशिंगटन DC ओपन टेनिस टूर्नामेंट। सेकंड सीड इटली के लोरेंजो मेसिटी को अपसेट शिकस्त। बर्तानिया के कैमरॉन नोरी ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हेडलाइंस के बाद बढ़ेंगी इन खबरों की तफसील की जानिब भी, लेकिन पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाए और लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराहों खुसूसन शराय कराकुरम और नारान बाबूसर चिलास शाहरा पर बहाली का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को हिदायत की कि जो मुसाफिर शाहराहें बंद होने की वजह से फंसे हुए हैं उन्हें रिहाइश, खुराक समेत हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं। मानसून के आने वाले स्पेल्स के लिए NDMA, PDMAs, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे मिलकर लाहे अमल बनाएं। शहरी सैलाब से बचाव के लिए म्यूनसिपल इदारे नकासी आब और सेवरेज के बेहतरीन इक़दामात करें।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए हादसात और सैलाब में जाँ बहक होने वालों की बुलंदी दराजात के लिए दुआ की। हालिया मॉनसून के दौरान क्लाउड बर्स्ट के वाकयात बड़े पैमाने पर हुए हैं। हालिया मानसून बारिशों के नतीजे में अब तक 242 अफराद जाम बहक जबकि सैकड़ों जख्मी हुए हैं। इसी हवाले से देखते हैं सईद वजीर की रिपोर्ट। पाकिस्तान भी दीगर ममालिक की तरह मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी के बायस मौसमी तगय्युरात का सामना कर रहा है। कहें गैर मामूली बारिशें तो कहें क़यामत खेज गर्मी, सैलाब, ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार में इजाफा और दीगर कई मौसमी तब्दीलियां शदीद मुतासिर कर रही हैं। मूसलाधार और गैर मामूली बारिशों के दौरान शहरियों ने एक लफ्ज क्लाउड बर्स्ट सुना हुआ है। इसके लफ्जी माना तो बादल फटना है, लेकिन किसी ने भी आसमान पर बादल फटते नहीं देखा। किसी भी छोटे सारे एरिया में बहुत सारी बारिश जो हो वो थोड़े सारे वक्त में हो जाए तो इसको नॉर्मली क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। क्लाउड बर्स्ट क्योंकि माउंटेन एरियाज में हो रहा होता है, लिहाजा माउंटेन एरिया एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन विंड्स को कि ये उनसे टकरा के क्विकली राइज होती हैं, एक कंडेंसेशन लेवल तक जाती हैं जहां पे क्लाउड्स बनते हैं। जैसे जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है तो मैदानी इलाकों में भी क्लाउड बर्स्ट के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक 1 डिग्री सेंटीग्रेड हवा 7% से ज्यादा नमी स्टोर कर सकती है। रवां बरस पाकिस्तान में जुलाई के महीने में रिकॉर्ड बारिशें हो रही हैं। अगर हम जुलाई के महीने की औसत देखें तो पंजाब में औसत से 80% ज्यादा बारिशें हुई हैं। क्लाउड बर्स्ट आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होता है जहां पानी के बुखारात से लदी हवा तेजी से ऊपर उठती है, क्योंकि पहाड़ की ढलवानी सतह उससे ऊपर उठने में मदद देती है। मैदानी इलाकों में आमतौर पर हवा निस्बतन आहिस्तगी से ऊपर उठती है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता दिनों होने वाली मूसलाधार बारिश और क्लाउड बर्स्ट की वजह से बंद होने वाली शाहराह कराकुरम और बाबूसर को ताहाल ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं किया जा सका, जबकि बाबूसर में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला फराक का कहना है कि सयाहों के लिए मकामी होटल मालिकान और हुकूमत ने मुफ्त रिहाइश का इंतजाम किया है। तर्जुमान का कहना था कि शाहराह कराकुरम की बंदिश से हज़ारों मुसाफिर जगह जगह फंसे हुए हैं, जबकि शाहराह रेशम को बिशाम तक बहाल करने का काम जारी है। क्लाउड बर्स्ट से अब तक बाबूसर शाहराह पर 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि सयाहों की मुताद्दिद गाड़ियों के साथ थक गांव में भी अराजी को नुकसान पहुंचा है। NDMA ने मुसाफिरों और सयाहों को मानसून बारिशों के दौरान पहाड़ी इलाकों के सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और तुग़यानी से बड़े पैमाने पर लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचा है। द्यामिर, बल्तिस्तान, गिलगित, गिजर और अस्तोर में सड़कों, पुलों, अराजी फसलों और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा है। गिलगित के करीब दिनौर, जोतल और नलतर नाले में शदीद तुग़यानी की वजह से दरियाए गिलगित में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। AC गिलगित ने मुतासरा इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। जिला अस्तौर के गांव बोलन नाले में सैलाबी रेले की जद में आकर एक खातून जाँ बहक हो गई। तुग़यानी से सैकड़ों कैनाल अराजी तबाह हो गई, जबकि 4 मवेशी खाने भी जद में आ गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अस्तौर ने मुतासरा इलाके का दौरा किया और नुकसानात का जायजा लिया। जिला खिजर के इलाके कांचे और थोई यासीन में सैलाबी रेले की वजह से लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि माल मवेशी और ज़रई ज़मीनें सैलाबी रेले की जद में आ गई हैं। सूबा पंजाब में बारिशों के बायस गुज़श्ता 24 घंटे में एक शख्स जाँ बहक जबकि ख़वातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये चौथा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। तफसील मौज़्ज़मुद्दीन से।
صوبائی دارالحکومت لاہور میں رات شروع ہونے والی موسلادھار بارش وقفے وقفے سے جاری رہی۔ تاجپورہ میں 115، ایئرپورٹ 109، پانی والا تالاب 99، چوک ناخدا 98، اپر مال 97، لکشمی چوک 94 اور مغل پورہ میں 86 ملی میٹر، جبکہ شہر میں مجموعی طور پر 81 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اور ٹریفک کا نظام بھی متاثر ہوا۔ واسا اور متعلقہ اداروں نے بروقت نکاسیاب کو یقینی بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر واسا اور ضلعی انتظامیہ کے افسران بھی فیلڈ میں موجود رہے، جبکہ صوبائی وزیر بلال یاسین نے بھی شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور نکاسیاب کے عمل کا جائزہ لیا۔ یہ جو سلسلہ ہے تقریباً 24 تاریخ تک تو کم از کم اس میں رہے گا اس کے اثرات، اور اس میں جو ہے نا درمیانی اور کہیں کہیں تیز بارش بھی اس کے اندر متوقع ہے۔ لاہور میں لکھو ڈیر کے قریب مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا، جبکہ خاتون سمیت 2 بچوں کو ریسکیو 1122 نے ملبے سے زندہ نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ شیخوپورہ، اوکاڑا، حافظ آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور ناروال سمیت دیگر شہروں میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارشوں کے باعث شیخوپورہ اور چنیوٹ میں بھی مکان کی چھت گرنے کے واقعات ہوئے، جن میں ایک مرد، ایک خاتون سمیت 4 بچے زخمی ہوئے، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق موسلادھار بارش سے نشیبی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ رواں سال مانسون بارشوں کے باعث مختلف حادثات کے نتیجے میں 135 شہری جاں بحق اور 485 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 198 مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ خستہ حال عمارتوں اور بوسیدہ مکانات میں رہائش اختیار نہ کریں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے بیشتر دریاؤں اور بیراجز میں پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے، جبکہ دریائے چناب میں خانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ممکنہ سیلابی خطرات کے پیش نظر تمام انتظامات پیشگی مکمل کیے جا چکے ہیں۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں مزید 4 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ تیز بارشوں سے برساتی نالوں میں طغیانی سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ اسی حوالے سے پشاور سے آپ کو رپورٹ دکھائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع سوات، ملاکنڈ، چترال، شانگلہ، تورغر، کوہستان، مانسہرہ، میدانی اضلاع مردان، چارسدہ، سوابی اور قبائلی اضلاع خیبر، باجوڑ، کرم کے علاوہ جنوبی اضلاع ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت میں مونسون بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق مختلف علاقوں میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے مزید 4 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ صوبے کے مختلف علاقوں میں املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ مردان میں مکان کی چھت گرنے سے 30 سے زائد مال مویشی ہلاک ہو گئے ہیں۔ چارسدہ اور مردان میں موسلادھار بارش نے مقامی انتظامیہ کی ناقص انتظامات کا پول کھول دیا۔ بارش کا پانی مردان، تخت بئی، چارسدہ کے سڑکوں پر جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ بارش کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہوا، جس سے لوگوں کو مشکلات پیش آئی۔ چارسدہ میں 3 سالہ بچے کی برساتی نالے میں بہہ جانے کے واقعے کے بعد مقامی افراد نے ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اہلکاروں کی ناقص کارکردگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور مونسون بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری ہونے کے باوجود نکاسی کا نظام ٹھیک نہ کرنے پر شدید تنقید کی۔ پی ڈی ایم اے نے مردان کے قریب کلپانی نالے میں شدید بارشوں کے بعد طغیانی آنے اور پانی کی سطح بلند ہونے کے حوالے سے الرٹ جاری کیا ہے۔ پشاور میں رات گئے سے گہرے بادل چھائے ہوئے، جبکہ دن کے وقت ہلکی بارش ہوئی، جس سے گرمی کی شدت کم ہوئی۔ الفا نگار، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔ کچھ دیگر خبریں بھی بلیٹن میں شامل کریں گے۔ یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ خسارے میں چلنے والے قومی اداروں کی نجکاری ملکی معیشت کی بہتری اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ تفصیل شاہ رخ شفیع سے۔ ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ نجکاری کے عمل کو مؤثر، جامع اور مستعدی سے کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ منتخب اداروں کی نجکاری میں تمام قانونی مراحل اور شفافیت کے تقاضے پورے کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قومی اداروں کی بیش قیمت اراضی پر ناجائز قبضہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کے مرحلہ وار نجکاری کے اہداف مارکیٹ کے معاشی ماحول
के मुताबिक मुकर्रर किए जाएं ताकि कौमी खजाने को मुमकिन नुकसान से हर सूरत बचाया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि निजकारी कमीशन में जारी काम की पेशरफ्त की बाकायदा निगरानी वो खुद करेंगे। निजकारी के मराहिल और इदारों की तश्कील नौ में बेहतरीन माहिरीन की मुशावरत और बैनुल-अक़वामी मेयार को बरकरार रखा जाए। इस मौके पर वज़ीर आज़म को 2024 में निजकारी लिस्ट में शामिल किए गए इदारों की निजकारी पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग में बताया गया कि निजकारी कमीशन मुंतखब इदारों की मरहलावार निजकारी में कानूनी, मालियाती और शोबाजाती तकाज़ों को मद्देनजर रख रहा है, जिसे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। इजलास को बताया गया कि PIA बिजली की तरसील कार कंपनियों समेत निजकारी की लिस्ट में शामिल तमाम इदारों की निजकारी को मुकर्ररा मुआशी, इदाराजाती और इंतजामी अहदाफ के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी खुश आइंद है। असरी तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम की तश्कील के लिए मुकर्ररा मुद्दत में इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें FBR इस्लाहात, इक़दामात के नताइज और गुज़िश्ता माली साल के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हसूल में मुआवनत मिली। इसे मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स निज़ाम की बेहतरी से महासिल में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स बोझ कम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस्लाहाती अमल में तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत और तजावीज़ यकीनी बनाए जाए। FBR इस्लाहात के नफाज में कारोबारी हजरात, ताजर बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखा जाए। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि टैक्स टू GDP के तनासुब में 1.5% का तारीखी इजाफा हुआ है। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 45 लाख से बढ़कर 72 लाख से तजावज़ कर गई। शुरा को बताया गया कि रिटेल शोबे के टैक्स में इजाफा, पॉइंट ऑफ सेल्स के इतलाक, रिटेलर्स के सिस्टम को FBR से हम आहंग करने और इन्फोर्समेंट की बदौलत मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म को बताया गया कि फेसलेस सिस्टम में नजरसानी के लिए खसूसी निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दो तरफा ताउन की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार किया है। इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने किंग चार्ल्स सोम और वज़ीर आज़म कियर स्टॉर्मर के लिए अपनी नई ख्वाहिशात का इज़हार किया और कहा कि वो इस साल के अवाखिर में बरतानिया की क़यादत के साथ अपनी मुलाकात के मुंतज़र हैं। उन्होंने बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मुस्बत पेशरफ्त से बरतानवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मुश्किलात दूर होंगी और अवामी रवाबित को फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने इस सिलसिले में हाई कमिश्नर के मुस्बत किरदार को ख़ास तौर पर सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान हाल ही में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात फ़रीक़ैन के लिए बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद साबित होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भी बरतानिया के साथ करीबी ताउन कर रहा है, जिसकी इस वक्त पाकिस्तान के पास सदारत है। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहते हुए इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आज़म के विजन और क़यादत में गुज़श्ता 1.5 साल में हुकूमत की माशी कारकर्दगी को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी से ऑस्ट्रिया की सुबकदोश होने वाली सफ़ीर मिसेस एंड्रिया विके ने इस ऐवान सदर में अलविदाई मुलाकात की। सदर ममलकत ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ में सफ़ीर की खिदमात को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रिया के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान के सियाहती शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रिया की एल्पाइन टूरिज़म में महारत से इस्तेफ़ादा कर सकता है। ऑस्ट्रिया की कंपनीज पाकिस्तान के तरबियत याफ्ता IT माहिरीन की खिदमात से फ़ायदा उठा सकती हैं। सदर ममलकत ने ऑस्ट्रिया के सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुंचाया। पाकिस्तान की सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मशरक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने अक़वाम आलम के सामने होती फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को इंसानियत का कत्ल करार देते हुए पाकिस्तान की जानिब से मसले के दो रियासती हल की भरपूर हिमायत की। तफसील नमरा सोहेल से। मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसे से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के लिए असूली मौक़िफ़ और यकजहती के अज़्म का अयादा करता है। Gaza has become graveyard for innocent lives as well as for the international law. Pakistan reaffirms its unwavering and principled support and solidarity with the Palestinian people and their right
to a viable, sovereign and contiguous state of Palestine based on the pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital. نائب وزیر اعظم نے کہا کہ سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ فلسطین کے حل میں اپنا مؤثر کردار ادا کرے. The Palestinian question is a litmus test for the credibility of the United Nations, the Security Council and the integrity of the international law. The Security Council must live up to its responsibility and ensure compliance with its own decisions. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران پر کیے گئے اسرائیلی حملوں پر شدید تشویش ہے. محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان شام میں استحکام کی حمایت کرتا ہے. اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب نے پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی خطے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گی. We thank Pakistan for elevating this open debate to a ministerial level. Israel has ravaged Gaza, but nearly 2 million human beings remain, including 1 million children. They must be saved. مباحثے میں بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں مشرق وسطیٰ کے لیے نائب سیکریٹری جنرل نے کہا کہ غزہ کو منظم انداز میں بھوک اور افلاس کا شکار کیا جا رہا ہے. انہوں نے فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کو فوری روکنے اور مسئلے کے 2 ریاستی حل پر زور دیا. مباحثے میں روس اور برطانیہ سمیت مسئلہ فلسطین پر بات کرنے کے لیے دیگر ممالک کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر برائے اقتصادیات و منصوبہ بندی فیصل فضیل ال ابراہیم کے درمیان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی صدارت کے دوران اعلیٰ سطحی تقریبات کے موقع پر ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2 طرفہ برادرانہ تعلقات اور دیرپا خوشحالی، امن اور علاقائی ہم آہنگی کے مشترکہ ویژن پر بات چیت ہوئی. تحفظ خوراک، مینوفیکچرنگ، کانکنی اور معدنیات سمیت اہم شعبوں میں تعاون کو بڑھانے پر بھی غور کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے باہمی مفاد میں سرمایہ کاری اور تکنیکی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور برطانیہ کے وزیر لارڈ کولنز کے درمیان نیو یارک میں سلامتی کونسل کے اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں نے معیشت، تجارت اور پارلیمانی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا اور مقبوضہ جموں کشمیر اور غزہ کی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا. لارڈ کولنز نے سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران پاکستان کی جانب سے تنازعات کے حل کے نظام کو مؤثر بنانے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا. انہوں نے برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے تعمیری کردار کو بھی سراہا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جہانگیر عالم چودھری سے ڈھاکہ میں ملاقات کی. اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور اور پاک بنگلہ دیش 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں پاکستان اور بنگلہ دیش نے سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس کو ویزا فری انٹری کی سہولت دینے کا اصولی فیصلہ کیا. دونوں وزرائے داخلہ کے درمیان انٹرنل سیکیورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. انسداد منشیات و انسداد انسانی اسمگلنگ کے لیے اشتراک کار بڑھانے اور انسداد دہشت گردی کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی. سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ننکانہ صاحب کا ہنگامی دورہ. ملحقہ دیہات کو سیلابی پانی سے بچانے کے لیے فوری طور پر 2 فلڈ ڈرین بنانے کی ہدایت کر دی. پنجاب حکومت سیلابی ریلوں سے متاثرہ فصلوں اور لائف سٹاک کے نقصانات کا ازالہ اور گرنے والے مکانات کی تعمیر نو کے لیے مالی معاونت فراہم کرے گی. تفصیل وردہ سلیم سے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ننکانہ صاحب شہر اور ملحقہ دیہات کا ہنگامی دورہ کیا. وہ نواحی گاؤں جسلانی موڑ پر سیلاب سے متاثرہ افراد کے گھروں میں گئیں اور زرعی اراضی کا معائنہ بھی کیا. وزیر اعلیٰ نے میرا پور گاؤں میں امدادی سامان تقسیم کیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے سب خواتین سے ہاتھ ملایا. علاقے کی بزرگ خواتین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مل کر خوشی کا اظہار کیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بچوں سے شفقت کا اظہار کیا اور ان میں تحائف بھی تقسیم کیے. دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سیلاب کی صورتحال، امدادی سرگرمیوں اور ضلع میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ نے ننکانہ صاحب کو ماڈل سٹی بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ضلع کے دور دراز دیہات کو ننکانہ شہر کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے اعلیٰ معیار کی سڑکیں تعمیر کی جائیں اور دوسرے ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ضلع ننکانہ کے لیے مختص الیکٹرک بسوں اور کلینک آن ویل کی تعداد میں اضافہ کرنے کا بھی اعلان کیا. ننکانہ صاحب سے منتخب اراکین اسمبلی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کی. اس موقع
पर जिले हुकाम ने ब्रीफिंग के दौरान वजीर आला को बताया कि ननकाना साहब में सैलाबी रेले से 22 देहात मुतासर हुए और 1525 एकड़ रकबा ज़ेरे आब आया। ब्रीफिंग में बताया गया कि ननकाना साहब में 20,000 से जायद तजावुज़ात का खात्मा किया जा चुका है, जबकि 1100 से जायद खुसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड दिए गए हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने ननकाना में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का भी अचानक दौरा किया। उन्होंने इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स में सहूलियात का जायजा लिया और मरीजों से मुफ्त अद्वियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। वजीर आला मरियम नवाज ने बरवक्त तशखीस और मुफ्त अद्वियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर के इलाके मुगलपुरा के रिहायशी आस अली को 5 लाख रुपए की माली इमदाद जारी कर दी गई है। आस अली ने बीमार बेटे के इलाज के लिए वज़ीर आला पंजाब से इमदाद की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला की हिदायत पर मुआविन खुसूसी ज़ीशान मलिक और डिप्टी कमिश्नर लाहौर आस अली को 5 लाख रुपए का इमदादी चेक पेश करने के लिए गए। वज़ीर आला की हिदायत पर माली इमदाद और बीमार बेटे के इलाज के साथ साथ मुस्तहिक शहरी के रोजगार का बंदोबस्त भी कर दिया गया है। अफवाज पाकिस्तान की आला क़यादत का सानह 9 मई के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक रहा है। रियासती अमलाक और शोहदा की यादगारों पर हमले करने वाले मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजाएं हुई हैं। ये सजाएं इस बात की गमाज़ी हैं कि रियासत किसी भी किस्म की बदअमनी, इंतशार या कौमी वक़ार पर हमले को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। तफसील मोहम्मद उस्मान से। सानह 9 मई के मुलजमों को तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद सजाएं सुनाई गई। फुटेजेस और शवाहिद की बुनियाद पर कानूनी अमल के जरिए शरपसंदों को सजाएं सुनाई गई। 9 मई वाकयात के हवाले से आला अस्करी क़यादत का वाज़ेह और ठोस मौक़िफ़ था कि इस सानह में मुलव्विस अफराद को आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। 5 मार्च 2024 को होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एलामिये के मुताबिक 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शोहदा के यादगारों की बेहुरमती करने वालों को इंसाफ के कुटहरे में लाया जाए। 25 मई 2023 को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि 9 मई के शरपसंदों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। इसी तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 9 मई 2024 को लाहौर गैरिजन में खिताब करते हुए कहा था कि 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कुटहरे में लाया जाएगा। आर्मी जिन अमूर पर बिल्कुल मुत्तफिक और क्लियर है वो ये है कि सानह 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। सानह 9 मई के वाकयात के बाद DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरी कौम का मुकदमा है। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुपकर मुल्क की सालमियत, सलामती और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 बड़े वाज़े तौर पे ये कहता है कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। दुनिया भर में रियासती अदारों पर हमले करने वालों को कानून के मुताबिक सख्त सजाएं दी जाती हैं। मिलिट्री कोर्ट्स ने भी 21 दिसंबर 2024 को सानह 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमों को तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद सजाएं सुनाई। मिलिट्री कोर्ट्स ने 26 दिसंबर 2024 को सानह 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमों को मुस्तनद शवाहिद और सबूत सामने आने पर सजाएं सुनाई। 2 जनवरी 2025 को सानह 9 मई के 19 मुजरिमों को माफी की दरख्वास्तें दायर करने पर माफ किया गया। मिलिट्री कोर्ट्स रियासत पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक तश्कील दी गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पर सानह 9 मई में मुलव्विस मजीद मुजरिमों को सजाएं सुनाई हैं। इन सजाओं से वाज़ेह है कि रियासत ने शोहदा की यादगारों और लवाहिकीन की हुर्मत को अव्वलीन तरजीह दी है। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मामलकत तलाल चौधरी ने कहा है कि 9 मई के वाकयात में 82 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके जख्मी किया गया और कई सरकारी और दिफाई अमलाक को नजर आतिश किया गया। PTI ने 9 मई को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हमले किए। 9 मई के मुल्जिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई है। तफसील फहद जावेद से।
वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई को लाहौर में 14 वाकयात हुए, जिना हाउस समेत दीगर अमलाक को नजर आतिश करके सबसे पहले सबूत इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर। इन्होंने खुद उस पर वीडियोस डाली जब ये जा रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, इंतशार और लोगों को भड़का रहे थे। इन्होंने अपनी वीडियोस, अपनी तकरीरों की वीडियोस, अपने काफलों की वीडियोस डाली। उन्हीं वीडियोस को बाद में फोरेंसिक किया गया, नादरा को दी गई, और उन वीडियोस के अलावा सेफ सिटी की वीडियोस थी, आपकी बहुत सारे टीवी चैनल्स की वीडियोस थी, जिन वीडियोस की बुनियाद पर उनको आइडेंटिफाई किया गया। नादरा ने फेस आइडेंटिफिकेशन की, जियो फेंसिंग हुई, जिसमें यह साबित हुआ कि ये लोग अपने रहनुमाओं से सैकड़ों लोग राब्ते में थे। तलाल चौधरी ने कहा कि बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत पीटीआई ने 9 मई को हमले किए। रियासत ऐसे वाकयात से दरगुजर और चश्मपोशी नहीं कर सकती है। अगर इन लोगों को सजाएं ना हो तो बाकी लोग जो जेलों में हैं, जिन्होंने इंतशार या किसी की जायदाद, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उसको सजा कैसे दे सकते हैं? अगर ऐसे अहम मकामात पे जिन्होंने हमलावर हुए उनको सजा नहीं दी जा सकती। और जब कोई दहशतगर्द जिसने दाढ़ी रखी हो, पगड़ी पहनी हो, वो हमला कर दे तो वो दहशतगर्द कहलाता है। और अगर कोई क्लीन शेव और वो कहे मैं यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूं और उसकी गले में पीटीआई का झंडा हो, तो वो अगर आकर जिना हाउस को या सरकारी अमलाक को जलाए तो क्या वो इनकलाबी है? नहीं, वो भी उसी तरह का सियासी दहशतगर्द है। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि सरकारी और अवाम की इमलाक की हिफाजत के साथ अमनो अमान कायम करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा है कि जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोटेक्शन बिल से सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होगा। सेनेटर सलीम एच मांडवीवाला, सेनेटर परवशा खान और सेनेटर शहादत ऐवान ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह दिन है। अमलाक की तोड़ फोड़ और रियासती इदारों पर हमलों की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे सईद वजीर। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। बिल से सहाफ़ियों के लिए पेशेवराना जिम्मेदारियों की अदायगी में आसानी होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेंडमेंट बिल के हवाले से सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा, जिस किस्म का भी कैंसर है, इस वक्त 2 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ पंजाब में, और पंजाब में सिर्फ कैंसर की एक रजिस्ट्री उन्होंने बनाई है, बाकी किसी प्रोविंस में नहीं है। तो डेटा नहीं है कि किस किस्म का कैंसर पाकिस्तान में फैल रहा है, किस किस्म का कैंसर किस प्रोविंस में ज़्यादा है, ये सारी इस रजिस्ट्री में रिकॉर्ड होगा। सेनेटर परवशा खान ने कहा कि 9 मई मुल्क की तारीख का शर्मनाक और स्याह दिन है। चंद लोगों ने भारत के बयानियों को फरोग दिया। अमलाक की तोड़फोड़ और रियासती इदारों पर हमले की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। जो यहाँ से भाग गए मुख्तलिफ रास्तों से, उस पर हमें सख्त तशवीश, यानी वो जो बाहर चले गए हैं उनको वापस लाने का भी कोई तरीका करना चाहिए, क्योंकि वो बाहर से बैठकर भी इसी किस्म की साजिशें जो हैं वो आज तक जारी हैं। हत्ता कि जब जंग हो रही थी भारत के साथ, तब भी वो पाकिस्तान कौम एक तरफ खड़ी थी, बहैसियत ये कौम सब साथ थे और चंद लोग अलग थे, और वो भारत का बयानिया जो है उसको प्रमोट कर रहे थे। सेनेटर शहादत अवान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब अरकान का हल्फ कानूनी है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई। तफसील मोहम्मद सुफियान से। सीनियर सियासतदान मियां मोहम्मद अजहर साबिक गवर्नर पंजाब और लाहौर के हल्का NA 129 से रुकन कौमी असेंबली रहे। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज बतौर सियासी कारकुन किया। वो 1987 से 1991 तक लाहौर के मेयर रहे, जबकि 1990 से 1992 तक गवर्नर पंजाब के ओहदे पर फाइज रहे। उन्होंने हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाहौर से तालीम हासिल की। वो कारोबारी दुनिया में नुमाया मुकाम रखते थे और खेलों के फरोग के लिए भी सरगर्म रहे। खानदानी जराये के मुताबिक मियां मोहम्मद अजहर काफी अरसे से अलील थे और मुकामी अस्पताल में
जेर इलाज थे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर अफसोस और खानदान से हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर ताज़ियती पैगाम में सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मरहूम मियां मोहम्मद अजहर के वालिद का मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम के साथ देरीना ताल्लुक था। दुआ गो है कि रब्बुल इज्जत मियां मोहम्मद अजहर मरहूम की मगफरत और उनके अहले खाना को सब्र अता करे। मरहूम की नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई। नमाज जनाजा शेखुल हदीस जामिया अशरफिया प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद यूसुफ ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में अजीजो अकारिब समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। भारत की आबी जंग छेड़ने की साजिश उसी के गले पड़ गई। चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर डैम की तामीर का आगाज करके भारतीय अज़ाइम का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मेगा डैम की तामीर के बड़े इकदाम पर भारत की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं राना इफ्तिखार अहमद की। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत को सफारती मैदान में एक और गहरा जख्म लगा है। भारत की आबी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए चीन ने मेगा डैम की तामीर से दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर कंट्रोल की तैयारी शुरू कर दी है। NDTV वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बाद चीन की जानिब से दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर डैम की तामीर के आगाज से चीन भारत कशीदगी में एक नए बाब का इजाफा हो गया है। इलाकाई पानी की सियासत में भारत की पसपाई हुई है। चीन की जानिब से डैम मंसूबा भारत की नाकामी का ऐलान है। चीन ने तिब्बत और भारत से गुजरने वाले ब्रह्मपुत्रा दरिया पर मेगा डैम की तामीर शुरू कर दी है। China has begun constructing a massive dam on Brahmaputra River in southeastern Tibet near border with India. डैम की इफ्तिताही तकरीब में चीन के वज़ीर आज़म ने शिरकत की। डैम से तिब्बत और दीगर खित्तों के लिए बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। NDTV वर्ल्ड ने मजीद कहा है कि नया डैम चीन के 3 गॉर्जेस से भी बड़ा होगा, जिससे भारत में लाखों लोगों की जिंदगियों पर संगीन असरात मुतवक्के हैं। Congress is saying that this move could prove to be a major threat to India. Congress has said that China could use this dam as a water bomb. मंसूबे में 5 हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि इस डैम पर सरमायाकारी 1.2 ट्रिलियन युआन तक पहुंचने का इम्कान है। डैम की तकमील के बाद भारत के लाखों शहरियों को संगीन माहौलियाती और आबी खतरात लाहक होने का खतरा है। सिंध तास मुआहिदा खत्म करके भारत पानी की लड़ाई चाहता था, मगर चीन ने भारत को इसकी ही हिकमत अमली का मजा चखा दिया है। भारत की आबी जंग छेड़ने की साजिश इसी के गले पड़ गई। चीन ने ब्रह्मपुत्रा पर डैम की तामीर का आगाज करके भारतीय अज़ाइम का मुंह तोड़ जवाब दिया है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें मकबूजा जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने जिला बांडीपुरा में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गिरफ्तार नौजवानों तारिक अहमद, बिलाल अहमद और मुदस्सर अहमद के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें मुश्तरका तफ्तीशी मरकज़ मुंतकिल किया गया है। ज़िला इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने अदालती तासुब का वाज़ेह इजहार करते हुए 2017 में दर्ज एक मन घड़त मुकदमे में मज़ीद 3 कश्मीरियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। गासिब भारतीय हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ आज ज़िला शोपियां में मुकम्मल हड़ताल की गई। ताजरों और सिविल सोसाइटी के अरकान के साथ साथ तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी एहतजाज में शिरकत की और ख़बरदार किया कि अगर अवामी मफादात के खिलाफ यकतरफा फैसले होते रहे तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने मकबूजा इलाके में सियासी और इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल बिलखुसूस कश्मीरी नज़रबंदों की हालत ज़ार पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। DFP के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा हक़ खुदरादियत के लिए कश्मीरियों की जिद्दोजहद को दबाने के लिए जुल्म व तशद्दुद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीनी सिफारत खाने के एक वफ्द ने डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन शिव विन जियांग की क़यादत में पाकिस्तान टेलीविजन के इस्लामाबाद सेंटर का दौरा किया। वफ्द ने न्यूज़ रूम, MCR, टेक्निकल एरिया और स्टूडियोज़ का मुआयना किया। वफ्द को कौमी TV चैनल के मुख्तलिफ शोबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को पाकिस्तान टेलीविजन और चीन के CGTN चैनल के इश्तराक से चीन के हवाले से चलने वाले न्यूज़ बुलेटिन चाइना एक्सप्रेस के बारे में आगाह किया गया। चीनी वफ्द ने बुलेटिन में खुसूसी दिलचस्पी ली और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कौमी TV चैनल की काविशों को सराहा। इस मौके पर चीनी वफ्द और PTV न्यूज़ के हुकाम के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिया के शोबे में
ताउन को वसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफारत खाने के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन ने कहा कि वो पाकिस्तान टेलीविजन के साथ जारी ताउन को मजीद वसअत देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि PTV दोनों ममालिक के दरमियान जारी ताउन और ताल्लुकात को उजागर करने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैक्सीन अलायंस के ताउन से 800 से जायद मोटरसाइकिलें तकसीम की हैं। पाकिस्तान के हिफाजती टीकों के प्रोग्राम में मुल्क भर में हिफाजती टीकों की नकलो हरकत को बढ़ाने और 65 मिलियन से ज़्यादा आबादी वाले अजला के मुश्किल इलाकों तक रसाई हासिल करने के लिए एलोकेशन प्लान के तहत मोटरसाइकिलें फराहम की गई हैं। मोटरसाइकिलें मुल्क भर में वैक्सीनेशन के हवाले कर दी गई हैं ताकि दूर दराज इलाकों में बच्चों को वैक्सीन और हिफाजती टीकों की सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सके। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पठवार, शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में शदीद मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। शदीद बारिश के बायस चित्राल, दीर, सवात, शांगला, मानसेरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, बोनेर, चारसद्दा, सवाबी, मर्दान, मरी, गलियात, नौशहरा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और बलूचिस्तान के मकामी बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का ख़तरा है। शदीद बारिशों के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, ओकाड़ा, नौशहरा और पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। नाज़रीन, खेल में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मैच कल ढाका में खेला जाएगा। मैच शाम 5 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। पहले मैच में बांग्लादेश ने 7 विकेटों से कामयाबी समेटी। दूसरा मैच मेजबान टीम ने 8 रन से अपने नाम किया। Down the wicket he goes now. There's a swirling in there. There is going to be a field. Backs away and that's नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बैनुस्सूबाई राबिता राना सनाउल्लाह खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का 34वां इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने फेडरेशंस को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में हॉकी फेडरेशन की जानिब से फंडिंग और हिसाबात न देने के रवैये पर नापसंदीदगी का इजहार किया गया। प्रो हॉकी लीग में शमूलियत की दावत के मामले पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PSB की जानिब से इस इवेंट में शामिल होने की वजूहात और मकासद के हवाले से खत लिखा जाए। PSB बोर्ड ने इब्तदाई इल्हाक के बाद दस्तावेजात जमा न करने पर चुक बॉल, पैराग्लाइडिंग एंड हैंड ग्लाइडिंग, कैनोइंग फेडरेशन की इब्तदाई रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। बोर्ड ने फेडरेशन के ओहदेदारान के लिए उम्र की हद 70 साल करने की भी मंजूरी दी है। जी नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और उस्मा चौधरी को अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा।